Hello and welcome. Welcome to the fourth learning session of chapter number 1 of Science 2, which is heredity and evolution. So far in this chapter, these are the topics we have covered, right? We had looked at heredity, which is transfer of characteristics from one generation to the next generation. We looked at structure of DNA. We looked at types of RNA and what are the various functions. We looked at a long process, which is for protein synthesis. How are proteins produced in our bodies? And there were three important steps: transcription, copying codes from DNA into mRNA, translation using that code, making amino acids by transfer RNA, and translocation, ribosomes moving from one end of the mRNA to the other end of the mRNA, that is known as translocation. So all these steps we had looked at in detail in protein synthesis. And finally, in our last learning session at the end, we had looked at theory of evolution, right? These are the topics we're going to cover today. We're going to look at evidences of evolution. Evidence is any proof. Okay, so first is morphological evidence, anatomical evidences, vestigial organs, paleontological evidences, connecting links, embryological evidences. Okay, there are 6 proofs of evolution that we're going to look at. These are the new words we're going to learn today: morphology, Venetian, petiole, anatomy, paleontology, anthropology, cuticle. Paleontology it's a little difficult word to pronounce, right? So let's learn the pronunciation here itself. PA is pe, L is le, ON is on, TO is to, and law G. Paleontology. Paleontology. Okay? Paleontology. So these are the new words we're going to learn today. Okay? And here anatomy is also an interesting word to pronounce. Here it is made up of 2 separate words. Okay? Atom you all know, right? Atoms, which we have learned in chemistry, physics. Atom, उसके end में y लगा तो atomy. उसके पहले क्या लगाना है? An atomy, anatomy. Okay? So these are the new words we're going to learn today. Our objective for today is going to be students will be able to explain evidences of evolution with examples. Okay? So in the last learning session, we had looked at theory of evolution. What did it say? First living material was protoplasm, just the nucleus and the cytoplasm around it. Then unicellular organisms were formed, एक cell का organism. Then slowly larger and more complex organisms were formed. बड़े और ज़्यादा complicated organisms form हुए. And it was very slow and gradual. धीरे-धीरे और बहुत slowly ये process हो रहा था. So it took almost 300 crore years for us to make that transition, okay, from first living material to the complex organisms that we see around us today. So this was the theory of evolution that we saw in our last learning session. But where is the proof? How can we say? We told in the last learning session I told you, right, it was just a speculation, right? Speculation यानी guess है, क्योंकि 300 करोड़ साल पहले तो कोई कैमरास थे नहीं, किसी ने लिख के रखा था नहीं, so we don't really know. तो हम सिर्फ गेस कर रहे हैं, बट ये ऐसा वाला गेस नहीं है कि चलो अभी अगले बॉल पे 6 मारने वाला है या फिर अगले 4 बॉल में विकेट जाने वाली है, वैसा वाला गेस नहीं है. इट्स अ वेरी साइंटिफिक गेस. ओके, उसमें काफी स्टडी होता है, स्टडी करने के बाद गेस करते हैं. ओके, सो ऐसी हवे में ये गेस नहीं किया है, हवे में स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हैं. देयर आर सम एविडेंसेस मतलब क्या? प्रूफ्स. ओके, तो ये 6 टाइप के प्रूफ्स है जो सजेस्ट करते हैं कि हाँ मोस्टली एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रूफ्स है उसके. ओके, and we want to look at each one of them in detail, and at the end of the learning session you should be able to explain each and every one of them with examples. Okay, so let us start looking at the first one, morphological evidence. So what is the meaning of the word morphology? Morphology means structure, okay, या फिर form या फिर shape. So if I say कि ये मेरा जो मोबाइल फोन है उसका स्ट्रक्चर काफी फ्लैट है, so I'll say it has flat morphology, क्योंकि वो फ्लैट है, right? So morphology यानी structure, form, shape. So morphological evidence क्या होता है? Various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils. Nostrils यानी हमारे नाक में जो 2 छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उसको nostrils बोलते हैं. Nostrils, ear pinna. This is ear pinna. Thickly distributed hair all over our body. So उसमें काफी similarities है animals में. So if you see here three photos, right? पपी, शीप एंड फॉक्स. उनके आंखों का पोजीशन देखो, उनके नॉस्ट्रिल्स देखो, उनके ईयर पिना देखो,
दे लुक वेरी सिमिलर, इजंट इट? तो काफी सिमिलैरिटी है इन तीनों में, या फिर इन जनरल काफी एनिमल्स में काफी सिमिलैरिटी है। हेयर भी देखो पूरे बॉडी पे हेयर है, सबके बॉडी पे हेयर है। तो ऐसे काफी सिमिलैरिटीज है इन एनिमल्स में। whereas similarities in characters like leaf shape, लीफ का क्या शेप होता है, लीफ वेनेशन, वेनेशन मतलब वेन्स का जो नेटवर्क होता है। ओके, व्हाट इज वेनेशन? वेन्स का नेटवर्क। वेन्स का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो वेन्स होते हैं वो ब्लड सप्लाई करते हैं पूरे बॉडी में, whereas प्लांट्स में जो वेन्स होते हैं वो वाटर सप्लाई करेंगे, वो लोग फूड सप्लाई करेंगे पूरे बॉडी में। ओके, सो लीफ में जो वेनेशन होता है, लीफ पेटियोल, पेटियोल यानी क्या? वो जो लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करने वाला वो जो डंडा होता है छोटा सा, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। ओके, so the structure which connects the leaf with the stem is known as petiole. So leaf, petiole, etc. इनमें भी काफी similarities है with respect to plants. So even if you look at these plants, all of them seem very similar. लीव्स का शेप देख लो तुम, या फिर लीव्स को तुम अगर बहुत पास से देखोगे उसमें छोटे छोटे लाइंस होते हैं, और लीफ वेनेशन भी काफी सिमिलर है। इनकी जो पेटियोल्स होती है, जिस तरीके से कनेक्टेड है स्टेम के लिए, वो भी काफी सिमिलर है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज प्लांट्स में भी है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज इन दोस ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। क्योंकि अभी ये सब सिमिलर दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनका ओरिजिन, कहाँ से ये सारे लोग आए हैं, उनका जो ओरिजिन होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि काफी सिमिलर दिख रहे हैं सब लोग, और उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। ओके, कॉमन एंसेस्टर्स मतलब क्या? हमारे पेरेंट्स के 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 पेरेंट्स 100 बार 10 बार। ओके, सो हमारे दादा के परदादा के परदादा के परदादा, जो हमसे बहुत पहले वाले जनरेशन थे, उनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज है, इससे हमें क्या प्रूव कर सकते हैं हम? कि इन सब के ओरिजिन सेम होंगे, और इनके एंसेस्टर जो होंगे, दादा परदादा जो होंगे, वो भी सेम होंगे। ओके, सो दैट वाज योर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। Next, we're going to anatomical evidence. What is the meaning of anatomy? Anatomy means your structure of the body. Okay, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखता कैसा है। So structure of body से क्या एविडेंस मिलता? If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity. Superficial वर्ड का मीनिंग क्या है? ऊपर ऊपर से। ओके, सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से। सो सुपरफिशियली कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा किसके बीच में? ह्यूमन हैंड इज ओवर हियर। अगर तुम्हें यहाँ पे और छोटा फोटो दिख रहा है, खुद का हाथ देख लो। ओके, सो ह्यूमन हैंड। नेक्स्ट, फोर लेग ऑफ ऑक्स। सो हियर इज योर ऑक्स। फोर लेग मतलब क्या? इट इज अगेन मेड अप ऑफ टू स्मॉल वर्ड्स, फोर एंड लेग। फोर मतलब आगे का, लेग का मतलब तुम्हें पता है, राइट? फोर मतलब आगे का। सो व्हेन यू से फोरहेड, फोरहेड यानी ये फोरहेड क्यों बोलते हो? कि सामने वाला हिस्सा है, राइट, हेड का। फोरहेड। फोर साइड, आगे क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन करने अगर तुम्हें अच्छे से आता है, यू हैव वेरी गुड फोर साइड। फोर साइड यानी आगे का तुम देख सकते हो फ्यूचर में। सो फोर मतलब आगे का। सो ऑक्स हैज फोर लेग, राइट? दो आगे के, दो पीछे के, तो आगे का लेग देख लो। ओके, ऑफ ऑक्स का। नेक्स्ट, फ्लिपर ऑफ वेल। तो ये जो पार्ट है वेल का, उसको हम फ्लिपर बोलते हैं। एंड पेटेजियम ऑफ बैट। सो दिस इज बेसिकली द विंग्स ऑफ बैट। ओके, तो इन चारों चीज में कोई सिमिलरिटी दिखते तुम्हें? इसका जो पैर है, इसका जो विंग है, इसका जो फ्लैप है, हमारा जो हाथ है, इनमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है? ऊपर ऊपर से कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। हेंस दे आर सेइंग दिस, there doesn't seem any superficial similarity between them. Okay, similarly use of each of these structures is different in respective animals. ये four legs किसके लिए? ऑक्स में चलने के लिए, खड़े रहने के लिए। ये विंग्स किसके लिए? ये विंग्स किसके लिए है? बैट में टू फ्लाई। ये फ्लैप्स किसके लिए है? वेल में टू स्विम। और हमारे जो हैंड्स है, यूज इट फॉर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो ये दिखने में भी ऊपर ऊपर से काफी अलग है, और इन सबके फंक्शंस भी काफी काफी अलग है। ओके, बट if you look at the structure of their bones, see here they have given structure of bones of all. ये human hand है, four leg of ox है, पेटेजियम ऑफ बैट है, एंड फ्लिपर ऑफ वेल। बोन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिमिलर है, राइट? However, there is similarity in structure of bones and joints in organs of each of these animals. तो बोन के जो स्ट्रक्चर्स है और जो भी जॉइंट्स है, जहां पे भी दो अलग अलग बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं, उनमें काफी सिमिलरिटी दिख रही है। You can very easily see the similarity between all of the bone structures here. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. तो क्योंकि ये सब सिमिलर है, इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं कि इन सबके एंसेस्टर जो होंगे वो सेम होंगे, कि उनमें कुछ सिमिलरिटीज है।
सेम एंसेस्टर्स थे और फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे चेंजेस होके अलग अलग स्पीशीज बन गए, अलग अलग एनिमल्स बन गए. ओके, so we are done with anatomical evidence as well. Now we are moving on to vestigial organs. Vestigial organs we have already looked at in our previous learning session, so this should be easy to understand. Degenerated, okay, generate का मतलब क्या, फॉर्म होना. डीजेनरेट यानी डिफॉर्म हो रहा है, ओके, खराब हो रहा है, गायब हो रहा है, सो उसका मतलब होगा डीजेनरेटेड. जनरेटेड का ऑपोजिट. सो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप, ठीक से डेवलप नहीं हुए वो, ओके, पूरी तरीके से बन नहीं पाए, फॉर्म नहीं हो पाए. Useless organs जिनका कोई काम नहीं है of organisms are called as vestigial organs. So this is your definition for vestigial organs, can be asked in objective type questions. Okay, vestigial organs, what are they? They are degenerated or underdeveloped, useless organs of organisms. Those are vestigial organs. In living organisms, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ही जल्दी और सडन चेंज नहीं आ सकता कि चलो कि अभी बहुत ठंड बढ़ गई, अचानक 40 डिग्री सेल्सियस कम हो गया टेम्परेचर, ओके, अचानक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया, तो इसकी वजह से 1-2 साल में ह्यूमंस का स्किन एकदम जाड़ा नहीं हो जाएगा, एकदम फैट से भर नहीं जाएगा. तो इससे सडन चेंजेस नहीं होते किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नॉट जस्ट इन ह्यूमंस, एनी एनिमल, एनी प्लांट. बहुत फटाक से बहुत बड़ा चेंज नहीं होता कि नया टिश्यू बन गया, नया ऑर्गन बन गया. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर तुम्हारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो भी उतना जल्दी चेंज नहीं होगा. Instead, existing organs undergo gradual changes. So instead of new tissues or new organs, उसके जगह पे क्या होता है, जो existing organs है, पहले से organs जो है हमारे बॉडी में, उनमें धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं gradual changes. Okay, small changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situation. ऐसे कुछ कुछ structures होते हैं हमारे बॉडी में जो सिर्फ specific situations के लिए यूजफुल होते हैं. अगर वो सिचुएशन हटा दी तो बॉडी का जो बॉडी पार्ट या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर है वो यूजलेस हो जाता है. ओके, however same structure under different situation may become useless or even harmful. बट कभी कभी क्या होता है कि जो सेम स्ट्रक्चर किसी सिचुएशन में जो यूजफुल था वो किसी और सिचुएशन में हार्मफुल हो सकता है या फिर हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. ओके, दैट कैन ऑल्सो हैपन. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. Okay, तो अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो सिर्फ किसी एक सिचुएशन में काम में आ रहा था, हमें एक सिचुएशन में हमें बेनिफिट दे रहा था, एंड अभी वो सिचुएशन चेंज हो चुका है, तो जो सिचुएशन चेंज हो गया और वो स्ट्रक्चर की वजह से हमें हार्म हो रहा है. सो व्हाट विल हैपन, दैट स्ट्रक्चर विल बिगिन टू डीजेनरेट. वो धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो डीजेनरेट यानी फॉर्म होने का ऑपोजिट, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा. ओके, और वो हमारे लिए हार्मफुल है. और ये किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से. नेचुरल सिलेक्शन वी आर गोइंग टू लुक एट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लर्निंग सेशन. बट इन शॉर्ट, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? जो कोई भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें स्पीशीज और बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं हमारे बॉडी में. जो स्ट्रक्चर्स हमारे स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल नहीं होते, वो लोग या फिर वो एनिमल्स या वो प्लांट्स वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और फिर वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. ओके, तो डीजेनरेट हो जाते हैं वो या फिर गायब होना शुरू हो जाते हैं अगर वो स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर. ऐसा नहीं कि 2 जनरेशन में, 20 साल में, 100 साल में, 200 साल में वो स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा हमारे बॉडी से, ऐसा नहीं होता. इट टेक्स थाउजेंड्स एंड इयर्स फॉर वन स्ट्रक्चर टू डिसअपियर. तो काफी टाइम लगता है उसको, ठीक है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. तो ये हमेशा कोई ना कोई, हमेशा हर एनिमल या फिर हर प्लांट का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं है, अभी भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है. ओके, such organ though non-functional in certain organism may be functional in other organisms. तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनका कोई काम नहीं होगा, बट कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन काफी यूजफुल भी हो सकता है. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट पॉइंट वन मोर टाइम. ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है, बट वो सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल में यूजफुल हो सकता है. ओके, दैट इज, इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स में काम का है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में काम का नहीं है. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. So appendix we had seen last time, right? Appendix, which is useless to human, is fully useful and fully functional organ in ruminants. So ruminants यानी
जो प्लांट बेस्ड डाइट होता है, जो लोग बहुत घास फूस या बहुत सारे लीव्स खाते हैं, तो उनमें जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। बट ह्यूमंस अभी खाना पका के खाने लग गए हैं, सो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। सो हियर इज योर अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा नीचे होता है अपेंडिक्स। तो आज के जमाने में ह्यूमंस हैव नो यूज फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गन, ओके। बट रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, उनके लिए वो यूजफुल होता है। Similarly, muscles of ear pinna, which are useless to human, are useful in monkeys for movement of ear pinna. Okay, तो हमारे ear pinna के जो muscles है वो भी हमारे लिए यूजलेस है, बट वो सेम मसल्स मंकीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि उससे वो अपना ear pinna चेंज मूव कर सकते हैं। ओके, so these two are examples of vestigial organs. Another two examples of vestigial organs are here. Okay, various vestigial organs like tailbone or coccyx. Okay, how do you pronounce this? COC is cock, CYX is how will you pronounce that? COC is cock, CYX is kicks. Okay, coccyx. So coccyx का सिंपलर वर्ड क्या है, या फिर सिंपलर ऑल्टरनेटिव क्या है? टेल बोन। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी टेल बोन, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके एंड में एकदम टेल बोन होता है, कॉकिक्स। ओके, नाउ वी डोंट हैव टेल्स, राइट? तो टेल बोन का क्या काम है, राइट? समथिंग सिमिलर टू दैट, इट हैज no use in our body. Similarly, wisdom teeth we had seen in the last learning session. wisdom teeth हमारे एकदम पीछे होते हैं, या तो वो बहुत ऊपर होते हैं या फिर ये बहुत नीचे होते हैं। ओके, तो हमारे काम का नहीं होता, वो चूइंग में हेल्प नहीं करते। बॉडी हेयर, हमारे बॉडी पे जो हेयर होता है, अगेन इट हैज नो यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। अब हम तो कपड़े पहनने लग गए, स्वेटर पहन लेते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सो हमें बॉडी हेयर की जरूरत नहीं है, राइट? So all these are examples of vestigial organs. You have to remember examples of vestigial organs. तो ये भी प्रूफ है कि हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, राइट? धीरे धीरे स्लो चेंजेस आ रहे हैं। अगर स्लो चेंजेस नहीं आ रहे तो ऐसे ऑर्गन्स होते ही नहीं हमारी बॉडी में जो जिसका कोई काम नहीं। सिर्फ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ काम है हमारी बॉडी में, isn't it? So this is another proof of evolution, that vestigial organs exist because of evolution. Okay, next, observe and discuss. What I want you to do is pause the video here, look at all these images, and then just think what are all the thoughts that come in your mind. Okay, discuss तो नहीं कर पाएंगे हम, but at least pause the video, look at all the pictures in detail and think what can you tell. If you want to say something about these pictures, what will you say about these pictures? Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and do that. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video, looked at all the pictures, and you have some thoughts, some ideas about what these pictures are about. Okay, so यहाँ पे तुम्हें एक hint भी दिया था, fossils है. Okay, so here are my observations. Give me a minute. Okay, the given pictures are of fossils of reptiles and fish. Reptiles और fish के fossils है. Okay, so ये reptile के लग रहे हैं, ये भी reptile का लग रहा है, और ये fish का fossil लग रहा है, right? Fossils क्या होते हैं? Fossils are dead remains of plants and animals which existed in the past. जो बहुत पहले plants and animals थे उसके dead remains है, उनका जो कुछ भी बच चुका है body parts, उनको हम fossils बोलते हैं. Sometimes impressions यानी धब्बा. Okay, impressions यानी धब्बा. So sometimes impressions of animals and plants are formed on mud which get converted into fossils at a later stage. कभी कभी उनके बॉडी के वैसे एक धब्बा रह जाता है मिट्टी में, और फिर बाद में वो जो धब्बा रह जाता है मिट्टी पे, वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, after a few centuries maybe, they get converted into fossils. Okay. At other times, plants and animals get covered in layers of sediment. Okay, sediment क्या होता है? So generally sediment is used for the material which is brought by rivers. Rivers जो छोटा छोटा fine particles लेके आते हैं sea के पास, उसको sediment बोलते हैं. Okay, so sediment is nothing but fine sand, छोटे छोटे particles. So plants and animals sediments के अंदर बरी हो जाते हैं यानी दब जाते हैं. They get buried deep by increasing layers of soil and the tissues and muscles get decayed. Okay, तो अगर ये plants and animals जब मर जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी आना शुरू हो जाता है, वो दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, तो उनके अंदर जो टिश्यूज है, मसल्स है, वो डीके हो जाते हैं. ओके, वो गायब हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीके कर देंगे. वाइल हार्ड पार्ट्स और बोन्स
remains in the soil in the form of fossils. तो जो स्किन है उनका, जो मसल्स है, वो सब निकल जाएगा, बट उनके बोन्स रह जाएंगे, जो कुछ भी कड़क पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, और वो फॉसिल्स बन जाएंगे. ओके, सो दोज वर फ्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस that could have been made about the picture given in the previous slide. Okay, इसके बारे में. Now let us move on to the next evidence. Okay, paleontological evidence. Again, let me explain what is the pronunciation. Okay, Paleon, eon, tological evidence. Okay, paleontological evidence. Paleontological evidence. Okay, so paleontological evidence. So what is paleontology? Okay, so paleontology is nothing but study of fossil fuels. Okay, fossil fuels का जो study होता है उसको paleontology बोलते हैं. Okay, so paleontology जो study होता है उसमें क्या क्या proof है evolution का. So question may arise in your mind that which organisms existed millions of years ago. How can we tell this? Millions of years ago कैमरा थे नहीं जो हमने कैप्चर करके रखा है वीडियोस, या फिर कोई ह्यूमंस नहीं थे जिन्होंने लिख के रखा है कि अच्छा इस टाइम पे ऐसे एनिमल्स थे, वैसे प्लांट्स थे, तो हमें नहीं पता वो, राइट. तो हमें कैसे पता चला कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे हमारे अर्थ पे. द सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ. तो हमारे अर्थ के नीचे सीक्रेट है. ओके, large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano, etc. जब भी बाढ़ आती है, earthquake आ जाता है, volcano eruption होता है, तो बहुत सारे plants एंड एनिमल्स उसके नीचे दब जाते हैं. ओके, remnants से कौन से वर्ड से बना है? remains, remaining ये वर्ड से बना है remnant. तो जो कुछ भी बच जाता है, whatever is remained behind, that is called as remnants. So remnants and impressions यानी छापा. So remnants and impressions of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. So fossils का definition, you can treat it as a definition of fossils. Can be asked in objective questions in board exam. Okay. So उनको जो कुछ भी remain, जो कुछ भी रह जाता है पीछे, या फिर जो कुछ भी धब्बा रह जाता है अंडरग्राउंड में, उसको हम fossils बोलते हैं. And स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन. अगर तुम्हें एवोल्यूशन को अच्छे से समझना है तो तुम्हें फॉसिल्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. So now let us talk about carbon dating. I'm not going to read out each and everything, but I'm just going to directly explain you the concept. Okay. So what is carbon dating? Carbon dating एक टेक्निक है जिससे तुम पता कर सकते हो कि कोई भी फॉसिल है ये कितना पुराना है. Okay. So समझो ये एक फॉसिल है मेरे हाथ में. ओके, दिस इज, आई एम यूजिंग अ बॉटल अ लॉट दीस डेज, राइट. हर वीडियो में अपना वाटर यूज कर रहा हूँ, बहुत काम में आ रहा है वाटर बॉटल. ओके, सो अज्यूम दिस अ फॉसिल. ओके, फिश का फॉसिल है समझो, एंड नाउ यू वांट टू स्टडी दिस फॉसिल. द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क इज ये कितना पुराना है. ये 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, 1,00,000 साल पुराना है, 1,000,000 ईयर्स पुराना है. यू वांट दैट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फर्स्ट, राइट. तुम क्या करोगे, इसका एज पता करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम कार्बन डेटिंग ये टेक्निक को यूज कर सकते हो. सो इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन्स. ओके, एक होता है कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14. ओके, कार्बन 12 इज द जनरली विच वी नो, राइट. कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड इट ऑल्सो हैज 6 न्यूट्रॉन्स. तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 12 हो जाएगा. 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, 12 हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर. तो उसको कार्बन 12 बोलते हैं. But there is another type of carbon that exists in the universe which is known as carbon 14. उसमें दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं. So दो टाइप के कार्बन है, कार्बन 14 एंड कार्बन 12. तो and this is true for all living organisms. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के कार्बन होते हैं. तो ये जो फॉसिल है इसमें भी दो टाइप के कार्बन होंगे, एक होगा कार्बन 12, दूसरा होगा कार्बन 14. Now speciality about these two carbon types of carbon is carbon 12 stable है and it is non-radioactive, whereas कार्बन 14 अनस्टेबल होता है, इट इज रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव मतलब क्या, वो रेडिएशन एमिट करेगा. ओके, रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा, और उसका जो क्वांटिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कम होते रहता है, राइट. अभी व्हेन वी आर लिविंग वो वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं. तो जितना कार्बन 14 हम लूज करते हैं, जितना भी कार्बन 12 हम लूज करते हैं, वापस मिल भी जाता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, राइट. और उस खाने में कार्बन 14 भी आ जाएगा, कार्बन 12 भी आ जाएगा. बट एक बार हम मर गए, ओके, एंड ओनली आवर बॉडी रिमेन्स, वी आर नॉट लिविंग एनीमोर, वी आर डेड नाउ. तो उसके बाद और कार्बन हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, राइट. सो अभी ये जो फिश है, फिश का फॉसिल है, इसमें स्टार्टिंग में जब ये
the moment it died, it must have two types of carbon, carbon 12 and carbon 14. Now assume इसमें 100 carbon 12 के atoms थे, 100 carbon 14 के atoms थे. Okay, what we going to assume? इसमें 100 carbon 12 के atoms थे, 100 carbon 14 के atoms है. 100 carbon 12 के atoms है, वो change नहीं होंगे. Why? Because it is stable, वो radioactive नहीं है. तो ये 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 10,000 साल के बाद, 1 करोड़ साल के बाद उसमें सेम अमाउंट ऑफ कार्बन 12 होगा. ओके, 100 एटम्स, क्योंकि वो स्टेबल है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है. वेरस कार्बन 14 है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. राइट? तो समझो वो 1000 साल में एक कार्बन एटम, एक कार्बन 14 एटम कम हो जाता है. सो पहले 1000 साल में क्या होने वाला है इस फिश के साथ? 100 कार्बन एटम्स, कार्बन 12 एटम्स एंड 99 कार्बन 14 एटम्स. 2000 साल के बाद क्या होगा? सेम 100 कार्बन 12 एटम्स बट 98 कार्बन 14 एटम्स. तो हर 1000 साल में एक एक कार्बन 14 एटम गायब हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की वजह से निकल जाएगा. ओके, तो अभी मुझे क्या पता करना है कि ये कितना पुराना है. राइट? ये जो फॉसिल है मेरे हाथ में फिश का, वो कितना पुराना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं डिटेक्टर ले लूंगा और मैं देखूंगा कितना कार्बन 12 है इसमें और कितना कार्बन 14 है. अगर दोनों में इक्वल कार्बन 12 और कार्बन 14 है, इसका मतलब क्या है कि ये बस कुछ a few years back it died. अगर समझो बहुत ज्यादा कार्बन 12 है और बहुत कम कार्बन 14 है, यानी बहुत पुराना है, क्योंकि इतना टाइम लग गया हो कार्बन 14 को धीरे धीरे गायब होने के लिए, डिसअपियर होने के लिए, रेडियो एक्टिव में एक्टिविटी में निकल जाने के लिए. सो क्योंकि कार्बन 12 स्टेबल होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है, उसका जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा. बट कार्बन 14 जो होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है किसी भी डेड बॉडी में. तो तुम क्या करोगे, कार्बन 12 को मेजर करो, कार्बन 14 को मेजर करो, डिवाइड करो, देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, और उससे तुम पता कर सकते हो ये कितना पुराना है. सो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग. ओके, so I've explained you the entire concept of carbon dating. What you all can do now is you all can just read through these three sentences and you should understand what is carbon dating. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause and read the first 2 points and then we'll read the third point. Okay. Okay, I hope you pause the video and read the first 2 points. Next, the last point. Okay, I hope you have read all 3 points and now it should be clear what is carbon dating. Okay, let's move ahead now. So it is used in paleontology and anthropology. So paleontology हमने देख लिया था, right? What is paleontology? It is study of fossils. What is anthropology? Anthropology यानी study of evolution of humans. Humans कैसे evolve हो रहे हैं, okay? उसको जो study करते हैं, जो subject study करते हैं, उसको बोलते हैं anthropology. Okay? So paleontology is study of fossils. Anthropology is study of evolution of humans. So it is it मतलब क्या, कार्बन डेटिंग की बात हो रही है. ओके, सो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड इन पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो कोई ह्यूमंस के बोन्स मिल गए कहीं पे तो डिग करने के बाद, तो ये ह्यूमन कितना पुराना है, ये 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 1,00,000 साल पुराना है, वो अगर तुम्हें पता करना है, यू विल यूज कार्बन डेटिंग. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब क्या, जो कुछ भी लिखा हुआ चीज होगा, वो लिखा हुआ चीज भी कब लिखा था, कौन से ह्यूमंस ने लिखा था, किस डे एंड एज में लिखा था, उसके लिए तुम कार्बन डेटिंग यूज कर सकते हो. ओके, वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम्स इजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट देम. एक बार एज पता चल गया तो तुम बहुत सारी चीज उनके बारे में पता कर सकते हो. अच्छा, ये जो टाइम था उसमें इसके आजू बाजू ऐसे एनिमल्स थे, तभी क्लाइमेट ऐसा था, तभी इनका ऐसा कल्चर था, बहुत सारी चीज तुम्हें पता चल जाएगी एक बार तुम्हें उनका एज पता चल गया कि ये कितने साल पुराना फॉसिल है. और फॉसिल से क्या पता चला है, इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स यानी क्या, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ओके, हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो पहले इनवर्टिब्रेट्स है और इनवर्टिब्रेट्स में से वर्टिब्रेट्स धीरे धीरे इवॉल्व हो गए. ये हम पता कर सकते हैं फ्रॉम कार्बन डेटिंग एंड फ्रॉम paleontological evidences. Also there's another way from which you can tell. Okay, so if you also keep a check कि तुम्हें कौन से फॉसिल्स कौन से डेप्थ में मिल रहे हैं, तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा कि जो इनवर्टिब्रेट होते हैं वो एकदम बॉटम में मिलते हैं. एकदम डीप खोदोगे तो तुम्हें इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे, उनके ऊपर तुम्हें एम्फीबियंस मिलेंगे, उनके ऊपर तुम्हें रेप्टाइल्स मिलेंगे, उनके ऊपर तुम्हें मैमल्स मिलेंगे. तो कौन से डेप्थ पे तुम्हें फॉसिल्स मिल रहे हैं उससे भी काफी इंफॉर्मेशन मिलता है.
मिल जाएगा. ओके, एंड इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बोल सकते हैं अच्छा ये सबसे पुराने थे और ये सबसे रीसेंट है. तो ये पुराने हैं ना, तो ये पुराने है और ये रीसेंट वाले इस डेप्थ पे नहीं मिलते. रीसेंट वाले सिर्फ ऊपर ऊपर मिलते हैं. नहीं, जब बहुत पहले वाला समय था उसमें सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेट्स नहीं थे. और धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स में से धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट्स में से धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स बनना शुरू हो गए एवोल्यूशन से. सो दैट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन यू कैन यूज कि कौन से डेप्थ में कौन सा फॉसिल मिल रहा है तुम्हें. ओके, सो दैट वाज अ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. Next, observe and discuss. Okay, so again we won't be able to discuss like we discuss in a classroom, but what we can do is we can use the comment box. Okay, so what I want you to do is pause the video here and look at all these three animals and see their characteristics. उनमें क्या similar है, क्या different है, that I want you to tell me. And how will you tell me? How will you discuss with me, with their friends? Put it in the comment box so that once you put it in the comment box, all other students who are watching the video after you, they can also look at your comments and they can also contribute to the discussion. And hence we can have the discussion in the comment box of this video. Okay, so what I want you to do is pause the video here, look at all three diagrams and tell me what is similar, क्या तीनों में same है, and what is different, तीनों में क्या अलग अलग है. Okay, that I want you all to do. I'm going to wait for 5 seconds for you to do that and put your comments in the put your thoughts, put your observations in the comment box. Okay, I hope you all are done observing and putting your thoughts, observations in the comment box. See, we cannot unfortunately meet in classroom, but at least we can do this, right? At least we can discuss in the comment section of a video, and that will make us feel more like a part of a class, part of a family, right? Okay, so let's move now. We are moving on to connecting links. So one thing I want to tell you all before we actually start with connecting links, to understand connecting links very well, you need to understand animal classification very well. Okay, so these are the different types of animal classifications we saw in the chapter animal classification, right? Porifera, Cnidaria, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Chordata, Hemichordata, Echinodermata, इन सब के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, फिर तुम्हें connecting links अच्छे से समझ में आएगा. If you haven't watched all the videos of animal classification, you might find it a little difficult to understand connecting links, but still you can try to. Okay, so let us see. Okay, let us see. So some plants and animals show morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting links. ओके, तो ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी यानी क्या, फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर दो अलग अलग ग्रुप्स के जैसे होता है. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमल है उसका स्ट्रक्चर नाइडेरिया जैसा भी है और एस्केलमिंथस जैसा भी है. सो दोनों की तरह उनके कैरेक्टर्स है. सो इसका मतलब कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है. सो नहीं, नाइडेरिया और एस्केलमिंथस कोई ना कोई कनेक्शन होगा, इसलिए ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस फॉर ओनली एनिमल किंगडम, राइट? इसलिए ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है और एक में से दूसरा इवॉल्व हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल, peripatus. Okay, so peripatus, in peripatus characters like segmented body, segmented body नहीं, टूटे टूटे बॉडी, छोटे छोटे सेगमेंट्स है बॉडी के, पूरा का पूरा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स है, सेगमेंटेड बॉडी है. थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब क्या, आउटर कवरिंग, तो जो आउटर कवरिंग होगा वो बहुत पतला है. लाइक पैरापोडिया एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, पैरापोडिया जैसे उसके ऑर्गन्स हो सकते हैं किसमें, पेरिपैटस में. सिमिलरली दीज एनिमल शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन. ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब क्या, ट्रैकिया इज योर विंड पाइप. ओके, सो विंड पाइप से जो सांस लेते हैं उसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टू आर्थ्रोपोड्स. ओके, सो आर्थ्रोपोड्स जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं. सो इसका मतलब क्या है, पैरापोडिया जैसा भी है और आर्थ्रोपोडा जैसा भी है, राइट? दिस इंडिकेट्स दैट peripatus is connecting link between Annelida and Arthropoda. Okay, so let us see where is Annelida and Arthropoda. Annelida is here, okay, and Arthropoda is here. So इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक मिल गया. क्यों? क्योंकि जो पेरिपैटस है वो उसके कुछ कैरेक्टर्स
एनालिडा जैसे भी है, कुछ कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा जैसा भी है। उसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, पेरिपेटल्स। इसका मतलब क्या हो सकता है कि एनालिडा में से आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुआ है, पहले सिर्फ एनालिडा था और उस एनालिडा में से कुछ कुछ एनिमल्स इवॉल्व होके आर्थ्रोपोडा बन गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, दैट वाज द दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू से थ्रू कनेक्टिंग लिंक्स, कि वो भी कैसे प्रूफ बन सकता है एवोल्यूशन प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की तरह एग्स ले करते हो, बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। मेमोरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। ओके, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स किस में होता है, मैमल्स में होता है, हेयर भी मैमल्स में होता है, वरस अंडे जो ले करते हैं वो रेप्टाइल्स में होता है। तो ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है, इनमें दोनों जैसे दोनों के कैरेक्टर्स है, रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स है, मैमल्स के भी कैरेक्टर्स है। सो अगेन व्हाट यू कैन से इज दोनों के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक है, एक में से दूसरा इवॉल्व हुआ होगा। लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश। तो फिश जनरली कैसे सांस लेते हैं, थ्रू गिल्स, राइट। यहाँ पे छोटे छोटे कट होते हैं शार्क जैसे, और उसमें से वो लोग सांस लेते हैं। बट ये जो लंग फिश है, वो फिश होने के बावजूद वो सांस लंग्स में से ले रहा है। सो इट कुड बी कनेक्शन बिटवीन फिशेस एंड animals that are living outside water. These examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. इसका मतलब क्या है, mammals reptiles में से आए हैं और amphibians fish में से आए हैं। mammals का मतलब क्या होता है, reptiles का मतलब क्या होता है, amphibians का मतलब क्या होता है, fish का मतलब क्या होता है, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, all this we are looked at in detail in our chapter animal classification. If you're curious enough, you can just Google what is the meaning of mammal, what is the meaning of reptile, what is the meaning of amphibian, what is the meaning of fish. Fish ka meaning you'll mostly know, but mammal, reptile, amphibian, all these are biological terms, and it's very difficult sometimes to remember the meaning of all these biological terms for a long period of time. So whenever you feel that you have forgotten, feel free to go on Google and search the meaning of that word and note it down in your notebook so that you don't forget it again. Okay, and all this we have already seen in detail in chapter animal classification. Hence, I'm not going into detail right now. So that was connecting links. Again, observe and discuss. What I want you to do is, I want you to look at the picture, pause the video for how much ever time you want, and look at this picture and make observations. इसको देखिए तुम्हें क्या पता चल रहा है, क्या है, all these are give me a minute. Okay, embryos. All these are embryos. Okay, these are embryos of different animals. ये fish का embryo है, first stage, second stage, third stage. Salamander का embryo, first stage, second stage, third stage. Tortoise का, chicken का, pig का, cow, rabbit, and this is human embryo. So ये सारे animals के first stage के embryo, second stage के embryo, and third stage के embryo. What I want you to do is pause the video here, make observations, and what do you think about it? What are the similarities? What are the differences? What do you observe? And put in the comment section of this video. Okay, only when you put comments in the video, it will be more interactive and you will feel like we are discussing things like a class. Okay, so please pause the video here and put comments in the comment section of this video and make this more interesting for you as well as other classmates of yours. Okay. Okay, I hope you pause the videos and you have already put comments in the comment section of this video and you have expressed your observations. So what are the observations? Comparative study of embryonic development stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities in initial stages and those similarities decrease gradually. तो क्या पता चलता है कि सारे जो एनिमल्स है उनके जो स्टार्टिंग का स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो सब एकदम ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। देखो कुछ फर्क है ही नहीं, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट लुक वेरी सिमिलर, और ये सब वर्टिब्रेट एनिमल जिसके वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होते हैं, इनिशियल स्टेज है, वो बहुत सिमिलर होते हैं। ओके, और धीरे धीरे वो अलग अलग होने लगते हैं। अभी यहाँ पे फिश जैसा दिख रहा है, यहाँ पे टॉर्टोइज जैसा दिख रहा है, वो यहाँ पे पिग जैसा दिख रहा है, यहाँ पे मैन जैसा दिख रहा है, बट ये थर्ड स्टेज में वो अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में सब एकदम सेम लग रहा है। सो दैट्स व्हाट दे हैव सेड इन द फर्स्ट पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग में बहुत सेम लगते हैं इनिशियल स्टेजेस में, एंड स्लोली इन द ग्रेजुअल स्टेजेस द सिमिलरिटीज डिक्रीज, फिर वो धीरे धीरे अलग अलग दिखने लग जाते हैं। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेज सबका सेम है, इससे हम अगेन बोल सकते हैं कि
उनका जो ओरिजिन है जहां से वो सब एनिमल्स आए हैं वो सेम है. ओके, सो यू हैव 6 डिफरेंट प्रूफ्स, वी हैव 6 डिफरेंट एविडेंसेस, 6 अलग अलग सबूत है हमारे पास जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन सही है. एवोल्यूशन से सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बन चुके हैं. ओके, एंड जब ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट ने कि एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस बने वगैरह वगैरह, many people got very angry because many people believed कि हमें भगवान ने बनाया, राइट, एंड भगवान ने हमको ऐसे ह्यूमन की तरह इस अर्थ पे पैदा किया, राइट. एंड व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कि अच्छा नहीं, हमारे पास इतना सारा प्रूफ है कि एक्चुअली हमें ऐसा भगवान ने डायरेक्टली नहीं बनाया, बट हम इवॉल्व हुए धीरे धीरे सेम कॉमन ओरिजिन से. ओके, सेम चीज से हम सारे अलग अलग टाइप के चीजें बने हैं, अलग अलग एवोल्यूशन के थ्रू बने हैं. तो बहुत लोगों को ठीक नहीं लगा, बहुत लोगों को गलत लगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजन गॉड ने हमें बनाया. नॉट जस्ट हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन और जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिर्फ ऐसे कुछ कुछ रिलीजन नहीं, ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स बिलीव कि ह्यूमंस को गॉड ने बनाया. whereas scientists now have proven through all these examples, all these proofs, all these evidences, इन सारे सबूत के साथ बता रहे कि नहीं इवॉल्व हुए हम, डायरेक्टली ऐसे ह्यूमन नहीं बने. ओके, so it's an interesting thing to think about. Whenever scientists make any discovery, they find out something, they give proof that okay, whatever we are saying, इसका proof भी हमारे पास. कुछ लोग people are unable to digest it because their belief system goes against it. So it's an interesting thing that जब भी वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, पीपल हैव गॉन अगेंस्ट द डिस्कवरी की नहीं ये तो गलत होगा, ये भगवान के अगेंस्ट है, बट प्रूफ इतना स्ट्रांग था कि फिर बाद में लोगों को एंड में मानना ही पड़ता है. आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एवोल्यूशन गलत है एंड भगवान ने हमें डायरेक्टली बनाया. सो दे आर जस्ट, वो लोग देख ही नहीं पाते कि प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है हमारे पास. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न कि तुमने जो कुछ भी बिलीव किया, अगर तुम्हें प्रूफ मिल गया कि वो जो बिलीफ है तुम्हारा गलत है, वो बिलीफ को चेंज करने तुम्हें आना चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न इन लाइफ. बहुत लोग होते हैं जो ये इनिशियल ईयर्स में 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अपना जो वर्ल्ड का बिलीफ सिस्टम में बना लेते हैं, बट फिर उसको चेंज नहीं कर पाते हैं और उसी बिलीफ सिस्टम में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू लिव लाइफ. द बेस्ट वे टू लिव लाइफ इज कि यू लुक एट एविडेंसेस कि तुम्हें क्या क्या प्रूफ मिल रहा है. एविडेंसेस को देखो, प्रूफ्स को देखो, उनको ऑब्जर्व करो, उसके हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम्स को बार बार चेंज करते रहना चाहिए. ओके, and that's the most important thing you need to learn from science. Okay, so that is it for this learning session. Just check whether you've accomplished today's learning objective or not. Can you explain me all the 6 different evidences for evolution with examples? If yes, then you have achieved today's learning objective. These are the new words that we learned today. First, we saw morphology. Morphology and study of form, shape, and structure of things. Venation. Venation is the arrangement of veins in a leaf. Petiole is the stalk that joins a leaf to the stem. Anatomy is structure of organisms and their parts. Paleontology is scientific study of plant and animal fossils. Anthropology is study of evolution of human characteristics. And cuticle is the protective covering of or shell of an animal. See about एंथ्रोपोलॉजी से हमें पता चल रहा है कि जो विजडम टूथ है ना, बहुत सारे लोगों में विजडम टूथ होता ही नहीं आजकल. दे आर बोर्न विदाउट द विजडम टूथ. सो इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कि क्योंकि अभी ह्यूमंस को उन विजडम टीथ की जरूरत है नहीं, तो देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न विदाउट द विजडम टीथ. सो इट मींस दैट ह्यूमंस आर अगेन इवॉल्विंग एंड वो काफी फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं. आई रेड अ स्टडी अबाउट दैट in some anthropology article. So it's an interesting subject, anthropology. Okay, so these are the new words we learned today, and that is it for this learning session. I hope you enjoyed, I hope you understood everything, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and